Assalamu alaikum. I'm Ali Numan Gilani, and I'm Chief Technology Officer at NIAIS, National Initiative of Artificial Intelligence and Industry 4.0. I welcome you all on this panel discussion in Summit on Emerging Technologies 4.0. So today we talk about opportunities and trends in software exports and futuristic technologies of like AR and VR. So let me give you a brief introduction of our esteemed panelists. Our first panelist is Hamid Mahmood. He's a digital consultant serving multiple business communities since 15 years, focusing their growth and success via successful digital transformation. He's studying digital marketing from Harvard, making a name for himself in the digital and IT community. And our second panelist is Dr. Adnan. He's faculty member at FAST and UCS, Director of Next Generation Internet Systems Research Group. And he is co-founder at Fanavri Technologies. It is providing a service-oriented research and development company dedicated to implementing next-generation ideas and inventing solutions targeting niche technology areas. So I will start the session. So my first question to you, Hamid, is that okay, why Pakistan is lagging in software exports specifically as compared to other countries in our region? और although situation is getting better, लेकिन उस pace पे नहीं हो रही जिस pace पे होनी चाहिए थी. तो आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल. So I've been into the different forums as well. और जो हमारी पिछली government थी, उनके कुछ members से मेरी मुलाकात भी हुई to have a discussion about it as well. कि if we benchmark ourselves to other countries, if we not go too far than in the same region, then why are we still behind the software exports or जो level है वो क्यों नहीं why we're still lagging those software exports still in Pakistan. So I think the major gap is the brand name. Even though alhamdulillah from last I think 1 decade हमारा जो brand name पाकिस्तान का है वो improve हुआ है, ठीक है, but still because I've been into working with the North American market since almost 15 years. Middle East के अंदर मैंने काम किया, यूरोप के अंदर मैंने काम किया, फार ईस्ट के अंदर मैंने काम किया, साउथ एशिया के अंदर हम काम करते रहते हैं, हमारे सेंटर्स वगैरह हैं. तो the only one thing I heard about a comment is that they have a trust factor in Pakistan. Okay. So it goes same as you go to the online shopping and try to shop something, you won't make a purchase unless you see the reviews about it, right? So मैं आपको बहुत छोटे लेवल पे एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ इसकी कि आपने किसी स्टोर पे जाना है, आपने भी किसी सर्विस को आप लोकली परचेज करना है, so you would actually see कि यार उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ क्या है, ठीक है. It goes the same way on international market as well. कि अगर किसी country के अंदर, let's say North America, they have a lot of people, they have a lot of organizations who actually want to outsource, the infrastructure to the countries like in South Asia where the labor cost is low, right? But why is it not happening with a good pace in Pakistan? Because of the brand name, right? So इसकी डिस्कशन बहुत लंबी चली जाती है कि ब्रांड नेम में क्या चीज आती है, बट आई थिंक के from the government level, from the level के people have a thought about Pakistan, and that is कि जब वो when they think about Pakistan तो एक trust factor आना चाहिए जो अभी तक नहीं है. इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के लिए अब वो अभी तक क्रिएट नहीं हो सका जो गैप है. So डॉक्टर अदनान, आपसे ये क्वेश्चन ये है मेरा कि माशाल्लाह आपका एकेडमी का और इंडस्ट्री का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है और आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को भी देख रहे हैं. ये बताएं कि एकेडमिया और इंडस्ट्री का ये जो स्किल गैप है, स्पेसिफिकली अगर मैं AR और VR के हवाले से बात करूं तो ये कैसे फुलफिल हो सकता है, और आपकी क्या सजेशंस होंगी कि ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडस्ट्री के अंदर इसको जो है वो जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए. सो थैंक यू. सो जस्ट ब्रीफ कमेंट जो हामिद से आपने क्वेश्चन किया था.
So I believe कि one of the reasons कि पाकिस्तान थोड़ा सा lag कर रहा है because we entered in this market bit late. पाकिस्तान की oldest company है Systems Limited that was established in 1976 और TCS from our neighbor country started 10 years before that. और that's actually one of the reasons कि वो हमने क्योंकि join late किया तो एक तो वो perception है पाकिस्तान की brand name की, but it's also, but we are right now I think in a very good position. We have 300,000 graduates and engineers in IT के और 20,000 graduates are produced every year. Of course, we have to keep check on the quality of those graduates. But I think inshallah ta'ala future is really very promising. हमारी population बहुत young है. During COVID time, all these things are promising. But एक और चीज जो आपने बात की कि पाकिस्तान की स्टार्टअप्स या कंपनीज मोस्टली फोकस करती हैं उन एरियाज के अंदर जो नीश टेक्नोलॉजी एरियाज नहीं होते. फॉर एग्जांपल SEO, फॉर एग्जांपल UX डिजाइन हो गया, वर्डप्रेस बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स. लेकिन जो हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एरियाज हैं जिनके अंदर साइबर सिक्योरिटी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, ब्लॉकचेन आती है, फिर VR AR टेक्नोलॉजीज आती हैं. these are some technologies जिस पर उतना फोकस नहीं है अगर आप अपनी कंपनीज को देखें. सो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो वहां पर है लेकिन ये चीजें नहीं है. उसकी दो रीजंस हैं. आप अगर इफ यू लुक एट फ्रॉम द एकेडेमिया पॉइंट ऑफ व्यू, नाउ ऑलमोस्ट ऑल द गुड यूनिवर्सिटीज, यू नो, ऐसे गुड यूनिवर्सिटीज लाइक FAST, लाइक LUMS, लाइक NUST, लाइक GIK एंड इवन AIR. एंड so अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में देखें तो they started offering programs in these areas. For example, now they are specialized bachelor programs like bachelors of science in AI or bachelors of science in cyber security, or master's programs like masters in data science or masters in AI or masters in cyber security. And this is not about FAST. NUST को आप देख लें, आप एयर यूनिवर्सिटी को देख लें, आप GIK को देख लें. So these programs are actually started and there are many people. They are actually हमारे, for example, I from the FAST perspective, one of the most famous programs is BS in AI. कि people और young students जो कि even FSC से आते हैं, उनके parents they realize कि AI is very important in future. But this is not enough because हम जो trainings कर रहे होते हैं या जो हम उनको education दे रहे होते हैं, industry की वहाँ पे participation बहुत ज़्यादा नहीं होती है. I have this feeler कि industry के अंदर जो हमारे executives हैं, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन टेक्नोलॉजीज की. इसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स को पिच करना, इन प्रोजेक्ट्स के यूज केसेस बनाना या सिनेरियोस बनाना, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव, बिजनेस डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव आप वो सर्विसेज पाकिस्तान में लेकर आए, वहां पर नॉलेज गैप है. और जब तक वो फिल नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट बॉडी तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा कोई स्टूडेंट जो है उसने बैचलर्स किया है AI के अंदर या मास्टर्स किया है, इफ इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं है जहाँ पे वो हायर हो सके, तो एट द एंड व्हाट ही इज डूइंग एट द एंड कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगा ऑन नॉर्मल वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. तो उसकी जो सारी स्किल है दैट इज एक्चुअली गोइंग वेस्टेड. उन ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स को पूरा करें, एंड फॉर देम द नंबर वन फैक्टर इज देयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, राइट? So do we have the legislations in Pakistan जो कि उन foreign ठीक है, मिडल ईस्ट, और वहां पे एक बहुत बड़ी मार्केट हेल्थ केयर की थी. ठीक है, तो जब when we had to build their system, so one of the major barrier we had to cope up was their information, the information and their non disclosures as well. ठीक है, तो उस सबसे पहले तो ये कि उनकी इंफॉर्मेशन, उनके जितने भी ये सिस्टम्स हैं उसको सिक्योर रखने के लिए हमने अपने ब्रांड नेम कितना उसको हमने प्रोमिनेंट किया है कि if they outsource in Pakistan, then their information will be saved. ठीक है, number two factor is that कि इसको enhance करने के लिए आपका जो intern करते हैं, so डॉक्टर अदनान ने मेंशन कि हम ट्रेनिंग्स वगैरह कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोजर नहीं आ रहा बाहर से. उसकी वजह ये है कि
people they're not ready to send their gadgets to Pakistan, for example. ठीक है, या they're not ready to invest as well. अब वो क्यों invest नहीं कर रहे? इसके बरक्स when I have to go in Middle East and I have to invest for a country for a company out there, for example मैंने software की firm बनानी है UAE के अंदर, I know exactly the ways and they have so easy processes to actually create a firm in UAE. If I go to North America, they have an easy process for foreigners to create firms in North America, right? So complete process हर चीज के, especially for the foreigners के all we have to think about is लेके जाने हैं या मैंने नॉर्थ अमेरिका के अंदर लेके जाने और मैंने अपनी फर्म को वहां पे सेटअप कर लेना है, राइट? सो हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, हमने उन लोगों के लिए जिन्होंने हमसे बड़े बड़े AR के सेटअप्स लगवाने हैं, हमसे VR के सेटअप्स लगवाने हैं, AI का काम उनको ईज दिया है कि वो यहाँ पे पैसे तो लगा लें लेकिन उनके पैसे बच भी जाएं, उनको पता हो कि यार प्रोसेस स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इस में ये होगा, प्रोसेस का एंड ये है और इन तरीकों से उनको पैसे आएंगे, राइट? तो जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक पूरा प्रोसेस चाहिए होता है, आपने चीज़ों को डिफाइन करना होता है, आपने SOPs डिफाइन करने होते हैं. आई थिंक वी आर लैकिंग समवेयर इन द विजिबिलिटी टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स के जिससे वो रेडी नहीं है आज बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को करने में. कि मैंने नहीं देखा कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि यार कोई कहे यार मैं 5,000 डेवलपर्स का सेटअप लगाना. इट हैपेंस इन आवर नेबरहुड, राइट? 5,000 10,000 लाइक लाख रिसोर्सेज के सेटअप्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? we need to create that ease of doing business in Pakistan. Right. So Dr. Adnan, मैं आप माशाल्लाह को फाउंडर भी हैं नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को और नीश जो टेक्नोलॉजीज एरियाज हैं उनको भी आप सारा देख रहे हैं. तो आपसे मेरा सवाल ये होगा कि AR और VR गेम डेवलपमेंट के अलावा इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो कहाँ पर हैं? सो आई थिंक ऑडियंस सुनना चाहेंगी ताकि उनको भी आइडिया हो कि ये जो है वो इसके अंदर काफ़ी काम जो है उसकी गुंजाइश है. मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. एम्पोरियम के लिए पूरा एक उनका पूरा जो VR वर्चुअल रियलिटी के अंदर आप उसको पूरा विजिट कर सकते हैं. दिस इज वन एप्लीकेशन. इस तरह मेडिकल इमेजिंग और मेडिकल टेक्नोलॉजीज के अंदर भी डेफिनेटली इसकी एप्लीकेशन होगी. तो हम आपसे डेफिनेटली इस बारे में development या entertainment is only one aspect when it comes to VR या AR. और unfortunately, I would not say unfortunately because I think still according to the forecast सबसे VR के एरिया में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट या जो पोटेंशियल है वो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ही है. So it's good कि we have that segment in Pakistan, game development and entertainment. But apart from this, actually there are many areas, especially when you couple it with AI. तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बो बनता है. So one of the areas where हम लोग खुद भी काम करें, that's about professional trainings. For example, especially in healthcare, कि अगर आपने ट्रेनिंग्स देनी है नर्सेस को या और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, so VR is a very good tool या टेक्नोलॉजी to make them that happen. उसकी रीजन ये है कि you don't need to have a very big infrastructure. You can give them a real environment and you can try to really make sure कि compliances और बाकी चीजें जो ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं they are actually learned by those trainers. So I can give you one example that, for example, you are making a professional training for a doctor. So doctor is going to ask a question to a patient. Your patient is your mannequin or something जो कि VR environment में है. So it should be intelligent enough कि वो natural language processing कर सके. Based on that, जो वहाँ पर जो avatar हैं your mannequin है should be able to answer the doctor. And based on that answer, जो ट्रेनर है या जो बेसिकली डॉक्टर को ट्रेनिंग दे रहा है, he can then see how doctor is reacting to that answer. These kind of things.
So AI plus VR. So this is one area, professional trainings. And recently, I was in discussion with some of the partners in UAE. Sirf, it's not only healthcare, there are other areas. Even they wanted कि उनके जो departments हैं, for example, fire extinguishers, they wanted to have a trainings, VR trainings for them. कि अगर एक building में जाते हैं तो किस तरह आपने penetrate करना है अगर कहीं पे आग लग रही है, what are the SOPs to follow and stuff like that. So this is one thing. Then comes, for example, आपकी जो navigation है, especially indoor navigations. This is one area जहाँ पर आपका AR, VR बहुत important है. Or not from now, I know when I was in Germany, so we were involved in a project जहाँ पर idea ये था कि construction industry को AR technology से enrich किया जाए. For example, there is an engineer there and he wanted to see the impact of a wall. So AR technology will assist that engineer कि वो वहां पर देख सके कि if there is a wall, what will be the repercussions. और उसको वापस आकर simulations करने की जरूरत नहीं है. He has his device and he can do everything on site. He can see the impact of doing different. So similarly, automotive industry. For example, AR enabled view, 3D view, जहाँ पर हम basically उस driver को assist कर सकते हैं to, for example, reduce the probability of accident and stuff like that. So this is another environment, another area जहाँ पर आपकी VR और AR technology. So actually, I hope everybody knows what is VR, what is AR. VR is completely virtual reality. Usually you need specialized gadgets for that. For example, Facebook is working on Oculus Quest devices. Microsoft का अपना HoloLens है. So you need to have devices for that. But again, those devices, जो अगर आप उन companies की vision देखें, they are trying to make those devices cheaper and cheaper and cheaper. This is one thing. When it comes to AR, augmented reality, it means that you are in a normal world, that world with some, for example, मैं इस रूम में बैठा हूँ, I would like to see कि अगर मैं curtains को change कर दूँ या मैं यहाँ पे कोई chair ले आऊँ, तो what will be the impact on this room, these kind of things. So barriers reducing, devices are getting cheaper and cheaper, technology is already there, iOS की अपनी AR kit है, Google की अपनी kits हैं जो कि बहुत mature हैं. So it's just now the matter of time कि आप proper students को जो universities में पढ़ रहे हैं या जो industry में उनको properly train करें. And I think ये potential बहुत ज़्यादा है. In general, I think I was just looking at some of the statistics. If you want, I can share with you. कि according to some of the statistics कि जो VR है, for example, by 2025, video games की जो market होगी, that will be around 11.6 billion US dollars. Healthcare की market with respect to AR VR is 5.1 billion. Engineering में 4.7 billion and so on. And one more aspect जो थोड़ा सा मैं भूल गया था, we have done a project which was about improving the shopping experience of a person. So जब आप online, for example, shop करते हैं किसी भी cloth को, so आप size तो देख लेते हैं, but you have no idea कि वो आपकी body पर कैसे लगेगा. So again, there are dimensions. One is going VR. VR में क्या है कि you can use AI to generate the personal avatar of that person. जो मेरी तरह दिखे, जिसकी body shape मेरी body की तरह ही हो. Using AI, deep learning especially, और वो फिर virtual reality या VR environment में you have your avatar और आप उस पर cloth wrap करके देख सकते हैं कि how it is going to look on you. This is one aspect. Another aspect is like Nike ने एक recently और खाली Nike नहीं और बहुत सी companies हैं, उन्होंने footwear की एक वो app बनाई थी. You have your mobile phone, you have your foot, and you can try different shoes and you can see how they are going to look on you. So these kind of retail या shopping की industry में again बहुत scope है. So Dr. Adnan, I'm anxiously waiting for that application because मुझे यकीन करें काफी सारे clothes try करने पड़ते हैं और मुझे बड़ी ना उससे कोफ्त होती है. तो I'm anxiously waiting और वो कहते हैं ना कि today's fiction is tomorrow's reality. वो हैरी पॉटर की आप एक मूवी देखें तो उसके अंदर वो अखबार के अंदर ना augmented reality के अंदर से कैरेक्टर ऐसे मूव कर रहे होते हैं. और इसी तरह मैंने एक टेक टॉक देखी, उसके अंदर वो मोबाइल को वो रखता है अपनी उस एनवायरनमेंट में, तो वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो पॉपअप होना शुरू हो जाती है. सो देयर आर इमेंस एप्लीकेशंस और आपने माशाल्लाह इतना हमें गाइड भी कर दिया. राइट. सो हामिद, सो माशाल्लाह आप शॉपिफाई प्रो, नेपोलो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और इतने बड़े बड़े टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेस को आप देख रहे हैं, सारा उनको लीड कर रहे हैं और इसी तरह डिजिटल इंडस्ट्री को भी आप सारा जो है वो फोकस कर रहे हैं.
सो आपसे हम ये गाइडलाइन लेना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और लोकल लेवल के ऊपर हैं, उनके लिए आपकी क्या गाइडलाइंस होंगी, और जो खासकर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर कम्युनिटी के लिए, ताकि वो सक्सेसफुली जो है वो पार्टिसिपेट कर सके इस डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर और सॉफ्टवेयर डेवलप करके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर एक्सपोर्ट कर सके। जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पर्सन लेवल, कि हमारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स निकलें, हमारे ऐसे बंदे निकलें कि जो कि इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दें। आई थिंक कि बिफोर आई गेट इनटू द कंपनी लेवल, वी नीड टू फिक्स दैट, कि जो द गैप बिटवीन एकेडेमिया और इंडस्ट्री है, इस गैप को फुलफिल करना। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 20 से 25 हज़ार ग्रेजुएट्स हो रहे हैं हर साल के अंदर, ठीक है। उनमें से आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द मेंबर ऑफ पाशा couple of days back, and I said के क्या प्रॉब्लम है? He said के हमें 2000 out of 25,000 are actually ready to work in a software house, and the rest 23,000 need 6 months to 12 months training, right? So अब जिसको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है 6 महीने साल की ग्रेजुएट होने के बाद, अब उसको अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान के अंदर कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस अपना क्रिएट करें और एंटरप्रेन्योर बन जाएं, नॉट अ गुड आइडिया। तो आई वुड स्टार्ट विद द रूट कॉज कि हमारा जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया का गैप है उसको फुलफिल करें बाय ब्रिंगिंग द पीपल लाइक डॉक्टर अदनान, जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एकेडेमिया के अंदर पढ़ा रहे हैं, एंड ही नोज एग्जैक्टली कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और उसी के मुताबिक ही विल बी टीचिंग, राइट। एंड नंबर 2, अपने कोर्सेज को ऐसे इतना चेंज कर दें और इतना क्लोज कर दें अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, इतनी तेजी से चीज़ें चेंज हो रही होती हैं कि 6 महीने साल का लर्निंग कर्व नंबर 1 ना हो। नंबर 2, आपने एक बंदा तैयार कर लिया, लेट्स से वी टॉक अबाउट दोस 2000 पीपल जो कि दे आर रेडी टू वर्क इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, then they at least need 5 to 7 years of working in different departments, different areas to actually see what's going on. हम लोग प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही कोई डेवलपर अपना जो ग्रेजुएट होते हैं लड़के, they are too ambitious, earning so much money. When they see कि यार यूएस से तो मैं डॉलर्स कमाऊंगा, यूएई से मैं दिरहम्स कमाऊंगा, तो why do I work for Pakistani rupees when I can earn dollars, when I can earn dirhams, right? And that's when they make mistake. And the reason I say they make mistake, because they think that development is everything, and development is actually not everything. You need to learn how to brand yourself. You need to learn how to perform a customer service. You need to learn how to communicate well to your customer. If you're talking to a local customer, the scenario is going to be different. If you're talking to an international customer, the scenario is going to be absolutely different. You need to understand how does the hierarchy system works, how does the SOPs works, how does all those documentation works, and that you don't actually learn in one day. That you don't learn right from the academia as well. You have to actually work. So जो हमारे स्टूडेंट्स, मैं ये बात स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो इतने एम्बिशियस फिलहाल ना हो. दे शुड वर्क इन गुड ऑर्गेनाइजेशन, इन गुड सॉफ्टवेयर हाउसेस, जहाँ से वो इन चीज़ों को लर्न करें. और स्पेशली जो स्मॉल टू मिड सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर से दे लर्न देयर टेक्निक्स. और जो लार्जर सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं, दे लर्न द हायरार्की, दे लर्न द प्रोसेसेस. ठीक है. अच्छा, जब आप और एंड दे शुड गो टुवर्ड्स अ नीच. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी एक स्पेशलिटी पकड़ लेनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, यू कैन, अगर आप, इफ यू टॉक अबाउट मी, देन व्हाट्स द वन थिंग you would think, यार Hamid is a guru for something, Dr. Adnan is a guru for something, I might be for digital, he might be for artificial reality, ठीक है, you might be for something else as well. And that person from the person level should be named and labeled as an expert in something, and he should increase the knowledge day by day in that specific niche as well, if you want it to be really successful. Now अब person level पे आपने अपने आप को ठीक कर लिया,
Now, moving towards the organizational level, जब आप अपनी इतनी खसूसियात को लेके एक organization को run करेंगे, ठीक है? तो then that organization will be actually somewhere matching the international standards. Because what we lack is, Middle East के अंदर आप काम करते हैं, they have a different taste of work. North America के अंदर आप काम करते हैं, they have a different taste of work. Europe के अंदर आप काम करते हैं, their work style is different. Far East में आप काम करते हैं, their work style is different. So first of all, आप choose करेंगे यार आपने काम किसके साथ करना है. And then when you start working with them, then you have to see कि यार उनका work style क्या है. For example, आप यूरोप के अंदर चले जाएं, प्रोसेस के बगैर नहीं चलेंगे वो कभी भी. वो कहेंगे यार हमें आप काम शुरू बाद में करें, पहले प्रोसेस बताएं, प्रोसेस क्या है. अनफॉर्चुनेटली हमारा गैप यहाँ पे ये, हम सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोसेस का नहीं हमें पता होता, हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की होती. ठीक है. I deal with like tens of communication every day, जिसमें मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस से मिलता हूँ और उनके प्रोजेक्ट्स भी मैं देखता हूँ. उनसे मैं कहता हूँ मुझे डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं इसकी. ये डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं बनाई थी, क्लाइंट ने बस फोन पे बता दिया था, हमने सॉफ्टवेयर बना दिया था. In order for you to match that European market, you have to create the process, and the process should include कि documentation आपकी start होनी चाहिए. If you want it to be on the level of North America, then your communication has to be absolutely great, right? आप either academia में अपने courses ऐसे रखें, अगर आपने BScs कर लिया है, आपने masters कर लिया है, उसके बाद literature पढ़ लें. Why not studying more? उसके बाद आप MBA कर लें. आपको आपके ऊपर कोई बैरियर तो नहीं लग गया कि आप उसके बाद पढ़ नहीं सकते हैं. Enhance your skills, आप सर्टिफिकेशंस करें जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो. ठीक है. तो if you have to work in North America, your communication skill has to be great. अगर आप उनके सामने उनकी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, आप टूटे फूटे अल्फाज में बात करेंगे, उनको कॉम्प्रीहेंड नहीं करेंगे, eventually they will say yeah, he is not the right person for me and he is not the right company for me. Right? So you, on the personal level and on the agency level as well, you need to enhance your communication skills, right? And then somewhere down the road, maybe Dr. Adnan can comment on that as well. Our courses should teach the customer service to every graduate. Okay, how to behave to your customer, right? यहाँ पे होता है क्या है, I've seen कि जैसे customer कोई बात आपको कहेगा और आगे से वो furious हो जाएंगे. Furious नहीं होना होता. ठीक है. It's not a part of customer service. अब वो कैसे उनको पता लगेगा यार customer service कैसे करनी है, जब कहीं ना कहीं वो पढ़ेंगे, जब किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे. अगर if you want to be on the level of international level पे अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो you have to play with all these things. And just rest assured कि अगर आप इन चीजों को पकड़ रहे हैं, then no one is gonna stop you from growing. मैं आपको बता रहा हूँ कि from last 6 months, I started off an e-com agency, ठीक है, and we went to 5 million PKR rupees per month just in 4 to 6 months, right? And for here in Pakistan शायद कुछ agencies होंगी जो 10 साल से काम कर रही हैं, लेकिन वो शायद इस लेवल पे नहीं पहुंच सक रही. ठीक है. तो you have to tick mark all the odds which are required in the international market. And then if you do that, no one is going to stop you from growing, and you will be recognized internationally as well. Right, Hamid. माशाल्लाह आपने इतना डिटेल में सारा किया है. आई एम टोटली इन एग्रीमेंट विद यू. और जहाँ तक NIEIS की बात है, तो यहाँ पर हम ना सिर्फ इनको प्रोफेशनली ग्रूम करते हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें जो आपने कहा है, अच्छा होता असल में क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जंप इन कर जाते हैं टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स के ऊपर डायरेक्टली, जबकि प्रोफेशनल ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है, खुश इखलाकी सबसे बड़ी बात जो है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये आई थिंक हमारी फ्रीलांस कम्युनिटी और स्टूडेंट्स जब इन सारी चीज़ों को सीखेंगे तो हमें डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता. एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट. ओके जी. सो मेरा डॉक्टर अदनान आपसे भी और हामिद से भी ये क्वेश्चन है कि ये जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनको सीखने के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से कितना अर्न कर सकते हैं. सो डॉक्टर अदनान आप अगर इसको पहले आंसर कर दें, फिर हामिद की तरफ मूव कर. It's hard to give the exact figure, but I can give you something from my experience. So in our university in FAST, we have actually
created a group of students जो कि freelancing कर रहे थे after maybe first year, because first year के जो students होते हैं, they are pretty young, लेकिन after first year, and many students what they were doing, they were just doing technical report writing or technical writing, but there were few students they were working in data science, for example, and AI, and I have seen people जो कि even during their graduate studies they were earning like $2,500 per month उस लेवल पर, at least with respect to मैं fast की बात कर रहा हूँ. So एक तो individual level का aspect है कि you as a freelancer, as a solo person, you can get their projects and you can do that. But from another aspect, from the company point of view, so if you have a good startup or good company where you are pitching for these kind of projects, actually the scope is enormous, because there are many companies out there, or many people out there, उनकी बहुत छोटी-छोटी problems होती हैं. So for example, once there was someone coming from Australia, and he was telling me that we have some problem to address, or we have some company onboarded from our neighbor country, India, but it's not working. And at the end, it turned out to be कि actually solution में कोई problem नहीं है, but the OCR part, which is actually trying to extract some information from the document, वो उसकी accuracy बहुत बुरी है. And this is just one aspect where the company was saying that we can give millions, because it was a very big company. उनके processes की accuracy या automation की जो accuracy है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से hinder हो रही थी. So if you go as a company, I think the potential is really enormous, and because then you can fetch projects from big customers, from big clients. Individual level के ऊपर I think 2,000-2,500, I think with data science, with AI, it is doable, at least after your graduate studies or during your graduate studies. Right. So Hamid, a quick comment from your side. जी मैं भी अभी एक इवेंट पे गया हुआ था. So I was talking to graduates जो कि IT में there were about 400 graduates from that institute. और one of the student actually asked me a question कि I'm not being paid much, right? So I answered him two things. I actually cross-questioned him two things. Number one thing, that how many people know you as a developer? That's number one. And number two thing is that how scarce you are, right? So it answers everything. So number one, when we're in North America, so people say being shown is 80% of the success. Being shown is 80%, because if you're not being shown, whoever you are, whatever you do, no matter how good you are, it doesn't matter. So एक छुपा खजाना है आप, ठीक है? So in order to create the value of yourself, you need to be exposed to a bigger audience, right? So if you remain in the audience जहाँ पे they pay low, it starts from South Asia, it goes to Far East, then it's a bit higher in Middle East, then it's a bit higher in Europe, then higher in North America. So depending on the region, आप अपने आप एक region में include कर लेंगे, you will think यार इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते. So number one thing is that expose yourself to a larger audience if needed, right? And number two thing is that जैसे Dr. Adnan ने कहा think about why that company was ready to pay millions, because that technology is and was scarce, right? And that's why we are talking about it. अभी भी ये technologies जो हैं, ये AR, VR, AI, blockchain, ये अभी भी scarce हैं. Why they are scarce? And they are scarce all over the globe, mostly because not a lot of setups have changed, right? तो जितनी scarce technologies में आप expert हो जाते हैं, एक content writer जिसने BA किया है वो भी content writing कर रहा होता है, ठीक है? इसके बरक्स जो कि developer है, it becomes a skill, it becomes a niche, और एक ऐसा developer जो कि जिसने data science पढ़ी हुई है, very few, so he can charge more. So let's now talk about the pricing. Again, I get back to the same thing. जो कि technology बहुत common है, which could be WordPress, which could be आप PHP normal लड़के कर रहे होते हैं, अपने universities में कर रहे होते हैं, अपने
फाइनल ईयर्स में बहुत ज़्यादा PHP के प्रोजेक्ट्स एप्स वगैरह बना के दे रहे होते हैं वो लोग, ठीक है। तो you don't have to go too far. You just benchmark yourself into the region. How much they are charging? Actually, they're charging very low. And why would someone pay you more and less to your neighborhood? You need to ask this question, right? Yes. What does it make difference? Then your neighborhood, they're charging same amount, right? Or they're charging less, right? So number one, एक अगर आप बिल्कुल नॉर्मल टेक्नोलॉजीज में जाएंगे जो कि मार्केट के अंदर बहुत ओपन है, so you could end up being sold for $500, $1,000. I've seen like being sold for even $5, $3 an hour as well, because that technology is being available everywhere and by every graduate, right? Now you become a little scarce. You become a platform oriented. For example, आप Shopify में आप चले गए हैं, आप सीन कि यार Shopify में के लड़के मुझे कम मिलते हैं, like नहीं मिल रहे होते हैं, and people are not even ready, even though it's not difficult as well. You can charge a bit higher, maybe 1,500, 2,000, and then what I personally think कि जब आप data science की बात करते हैं, जब आप AI और AR VR की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो inside the United States, the prices are from $100 to $200 to $300 per hour, right? यहाँ तक उनकी prices हैं. और अगर जो full time resources होते हैं वो $8,000, $10,000, $12,000, and even more, जो कि बिल्कुल आप स्टार्ट्स में चले जाते हैं. Yes, when they start thinking about कि यार हमने outsource करना है, तो आप उसकी उस cost के 1/3, 1/4 या 1/5 पे चले जाते हैं, ठीक है. तो लेट्स से अगर आप एक स्कार्स टेक्नोलॉजी है जिसमें यूएस के अंदर $10,000 पे हो रहा है, तो वर्स्ट के सिनेरियो 2,000 से कम नहीं, 1/3 $3,000, $3,000, 300. इसका अगर आप बिल्कुल आप उसके थोड़ा सा और बेहतर चले जाएंगे, so you can charge in between 3,000, 5,000 as well. And Right. if you are able to have your own agency in United States, in Middle East, in Europe, in Far East, जहाँ पे आपने उसको अपने footprints दे दिए हैं, ठीक है, and then you are able to actually outsource the developers, then there are higher chances कि आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उनको pitch करके you can even charge them higher as well. राइट. सो मेरा वैसे ही एक क्वेश्चन है आपसे, जेनेरिक क्वेश्चन है, सो उसको क्विकली अगर आप आंसर कर दें हामिद, कि इस वक्त जो फ्लटर है और जो डार्ट है और दूसरी तरफ जो रिएक्ट नेटिव है, इनका क्या इस वक्त स्कोप चल रहा है, या कोई और अगर टेक्नोलॉजीज हैं जो आप रिकमेंड करना चाहें? जी, एक्चुअली होता ये है कि जो स्मॉल स्टार्टअप्स होती हैं जिनके पास फंडिंग थोड़ी होती है, ठीक है, वो आर रेडी टू मेक एन MVP, लेकिन उनकी एक फंडिंग जो है उनकी लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर स्टार्टअप्स हैं, फंडिंग्स उनके पास होती है MVP बनाने के लिए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो होता है वो 20,000, 30,000, 50,000, लाख. उन कहते हैं यार इतने में हमने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है, और उनकी रिक्वायरमेंट्स लंबी चौड़ी होती हैं. सो व्हाट हैपेंस इज दैट इट डिपेंड्स ऑन द फंडिंग. अगर तो उनकी फंडिंग लिमिटेड है तो देन यू गो इनटू द टेक्नोलॉजीज के जिसके अंदर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म्स पे अलग-अलग काम ना करना पड़े. इसमें रिएक्ट नेटिव की आपने बात की, ठीक है, बट एज सून एज वो प्लेटफॉर्म वो कंपनी ग्रो करने लग जाती है. मैं आपको शॉपिफाई की एग्जांपल देता हूँ. शॉपिफाई स्टोर ओनर्स दे स्टार्ट विद $30 per month and they end up paying $3,000, $4,000 per month. And how and why? Because sale or $10,000 per month sale, and now they're making maybe $100,000 per month sale or even more, right? तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो जाता है, तो then you say कि यार अब मुझे नेटिव चाहिए, अब मुझे more robust applications चाहिए, ठीक है. तो I would say कि जो startups पे अगर आपका फोकस है, MVPs पे आपका फोकस है, तो then go with the technologies जिसमें आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म पे अलग-अलग काम ना करना पड़े, जिसमें रिएक्ट नेटिव है. और अगर आप स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जा रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जा रहे हैं जिनके पास फंडिंग है, तो देन राइट. सो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि क्वांटिफाई करना चाहिए कि वैल्यू फॉर टाइम. आपने अगर इतनी एफर्ट करनी है तो आप स्कार्स एंटिटी बने और आप डेफिनेटली उसका ज़्यादा अर्न कर सकें. अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी वो मुझे बड़े मज़े की लगती है, ये एक हिकायत है कि एक बाप ने अपने बेटे को एक घड़ी दी पुरानी सी,
तो वो पहले दुकान पे लेके गया तो उसने कुछ 1000 रुपए उसकी कीमत लगाई, फिर वो घड़ी साज के पास लेके गया तो उसने मजीद उसकी कीमत अच्छी लगाई, फिर वो जब म्यूजियम लेके गया तो उसी की करोड़ों रुपए जो है वो मालियत लगी। तो यू हैव टू नो दैट वेयर यू हैव टू सेल योरसेल्फ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। आप ऐसे ही किसी के पास मुंह उठा के चले जाए अपने आप को, वो आपकी वैल्यू ही ना समझ सके, वक़्त ही ना समझ सके। तो ये आई थिंक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने पॉइंट आउट किया है। सो डॉक्टर अदनान, मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि AR और VR के अंदर कौन से ऐसे प्री रेक्विजिट्स हैं जो बच्चे हमारे करें, और कौन से ऐसे टूल्स हैं जिन पे वो हैंड ऑन प्रैक्टिस करें, और इसके अलावा थोड़ी सी अगर आप हमें गाइडेंस दे दें कि क्या करिकुलम जो है इस वक्त डिवाइस होना चाहिए इसके अंदर, ताकि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो एक करिकुलम है वो हम यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा सके जो कि बहुत इफेक्टिव हो। तो इस पे आपकी राय चाहिए। एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू करिकुलम, हम हमेशा ये बात करते हैं कि इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया की कोलैबोरेशन होनी चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट, बट एक बेसिक चीज जो हमेशा, क्योंकि आई एम ऑन बोथ साइड्स, सो इफ यू टॉक टू द पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री, उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाईटेक काम कम ही होता है। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली वर्डप्रेस में वेबसाइट डिजाइनिंग, SEO, इस पर बहुत सी कंपनीज काम कर रही होती हैं, या सिंपल प्रोग्रामिंग इन पाइथन या PHP, लारावेल, इस तरह के फ्रेमवर्क, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मोस्टली ये वाला काम हो रहा होता है। सो इफ यू टॉक टू देम, दे नीड ग्रेजुएट्स। इवन जो हमारे जॉब फेयर्स में जो लोग आते हैं, हमें PHP के लोग चाहिए, हमें पाइथन के लोग चाहिए। सो वी हैव टू एक्चुअली कन्विंस देम कि इन यूनिवर्सिटीज हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ानी है। वी आल्सो हैव टू गिव देम कोर कॉन्सेप्ट्स। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजीज पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि इफ योर बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन टेक्नोलॉजी इज जस्ट कि आप रिएक्ट नेटिव की जगह अगर आप iOS की अपनी ऐप बनाना चाहते हैं स्विफ्ट को यूज करके या उसको, सो इट्स जस्ट अ चेंज इन टेक्नोलॉजी। इफ यू नो प्रोग्रामिंग वेल, इफ यू नो द बेसिक्स, तो स्विच में ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। आपने लारावेल की जगह आपने नोड.js को यूज करना है, आपने किसी एक्सप्रेस को यूज करना है, नोड.js के फ्रेमवर्क का कुछ और करना है। सो इफ योर बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन, सो जो मेरा एज अ जब हम एकेडमिक्स में होते हैं, जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है, स्टूडेंट्स कम्स टू मी and unke elective courses and they ask me which course should I take, and I always tell them emerging technologies, go for deep learning, go for cyber security, go for this kind of things. But at the end what they opt is web programming, which is fine, but मेरा हमेशा वहां पर उनको ये होता है कि web programming is fine and of course there is this huge industry in Pakistan, but when you are in industry, when you are in academics, try to learn computer science concepts, deep learning अगर आप, so आप इंडस्ट्री में कभी भी उस चीज पर काम नहीं कर सकेंगे। You don't know React, you can learn. Angular नहीं आती, learn कर लेंगे, लेकिन if you don't know deep learning, computer vision, आपको इंडस्ट्री पाकिस्तान में कभी इतना टाइम नहीं देगी कि गो टू एकेडमी या कोई कोर्स ऐसा करें जो कि, क्योंकि ये वो कोर्सेज हैं जिसमें बेस कवर होती है, मैथमेटिक्स आ जाती है, एवरीथिंग एल्स। सो दिस इज ऑलवेज दिस चैलेंज। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स AR VR थिंग, सो आई डू बिलीव कि देखें AR और VR फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपने खाली एज ए डेवलपर इस पे काम करना है, सो इट्स वेरी इजी कि यू हैव यूनिटी, अनरियल, ब्लेंडर, आप माया यूज कर सकते हैं फॉर 3D मॉडलिंग। अगर आपने बेसिकली प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो यूनिटी है, C# में आप बहुत इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल की बात करनी है तो बहुत वेल स्टैब्लिश्ड किस्म की iOS की अपनी AR की लाइब्रेरीज हैं, एंड्रॉइड की अलग हैं, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ एक्चुअली इट्स अ कॉम्बो। If you want to go in this area, you should have a very strong knowledge about image processing and computer vision. You should know and deep learning. And of course, you should also have an idea about mobile development, which is, I would say, कि वो course नहीं है, that's more like a technology कि आपको mobile development आनी चाहिए. But science is always important. मैं Unity पर काम करता हूँ, that does not, ठीक है, मैं I can get a job, but 50,000, 60,000 या whatever जो भी है, एक certain level से ऊपर नहीं जा सकूंगा. So if you really would like to have some big computer vision important, I can give you one example that हम एक project कर रहे थे and the idea was कि the instructor
who is doing the training, who is getting the training, वहाँ पे patient है and he is going to ask the question कि मेरी कितनी fingers हैं, and patient should able to respond. कभी वो गलत respond करेगा, कभी वो सही है, based on that वो पूरी training session चलता है. Now if he is raising 3 fingers, so in VR environment वहाँ पे कोई computer vision होनी चाहिए जो कि ये detect कर सके कि उसने 3 fingers raise किए हैं VR environment में, और of course based on that कि वो तो आपकी logic है कि whether वो correct answer देगा या incorrect answer देगा, but you need VR there, sorry, computer vision there. Similarly, if I'm asking a question, there should be NLP, natural language processing, and based on that. So I would say AI is important, computer vision is important, image processing is important, mobile app development is important. All these things go towards, and of course if you are talking about technologies, it's Unity, C# की programming आपको आनी चाहिए, Blender का basically idea होना चाहिए, Blender या Maya is not that much used, Blender is mostly used. आपकी एक थोड़ी सी sense होनी चाहिए 3D modeling की, या एक होती है ना aesthetics, वो चीज़ होनी, आपको VR की जैसे Steam VR या इस तरह की libraries पर थोड़ा सा hands on होना चाहिए. उसकी reason ये है कि अगर आप device specific programming करेंगे, so that will not be generic. आपने Oculus Quest के लिए program कर लिया, it will not work for another device. So वो वाली, and there are many new things coming in this area. For example, Nvidia ने अपनी एक, क्योंकि ज़्यादातर जो processing हो रही होती है when it comes to VR especially, वो device के ऊपर हो रही होती है, और many times if the computation is very intensive, it should be on the client, on the cloud side, on the server side. और basically Nvidia की कुछ नई लाइब्रेरीज या उन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं which enables कि आपकी क्लाउड साइड प्रोसेसिंग हो और आपकी जो डिवाइस साइड पर कम से कम आपकी प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल हो. So these are some of the things. राइट आपने बहुत डिटेल में माशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर दिया. और अच्छा, मजे की बात यह है कि एआई को ना पाइथन को सिनोनिम कंसिडर किया जाता है कि पाइथन अगर आपको आ जाएगी तो एआई आपको आ जाएगी. ये मिथ है. और मैं मैथमेटिक्स मेरा फर्स्ट पैशन है, प्रोग्रामिंग इज माय सेकंड पैशन. और प्रोग्रामिंग असल में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ही मर्ज होती है. मैं एक्चुअली डिस्क्रीट मैथ्स, लीनियर अलजेब्रा और इस तरह के डिफरेंट, मैं जरा हट के पढ़ाता हूँ ये कॉन्सेप्ट. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. डोनाल्ड कनूथ जो टॉप कंप्यूटर साइंस डायक्स्ट्रा को देख लें, जब तक आप कोर कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे, और इसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ वो भागते हैं, जंप इन करते हैं. आप डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथमिक अप्रोच जब तक नहीं क्लियर करेंगे, यू कैन नॉट डाइव डीप इनटू द एंड चेंज रेडिकली. आपने अगर रेडिकली किसी चीज को चेंज करना है, आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग एक हद तक आनी चाहिए, बहुत एडवांस मैथ्स नहीं. और प्रोग्रामिंग सेंस, लॉजिक सेंस आपकी पूरी अच्छी होनी चाहिए. गूगल और बड़े बड़े जितने जाइंट्स हैं वो इंटरव्यू इसी चीज का लेते हैं. मैं पिछले 3 सालों से ना डेटा स्ट्रक्चर्स ही पढ़ा रहा था, और इट इज रियली हार्ड फॉर मी टू कन्विंस स्टूडेंट्स कि दिस इज द वे. और उनको कि आप, you go to Microsoft, you go to Facebook, you go to Amazon, you go to anywhere, you are applying for example security position or computer vision, आपके इंटरव्यू में they will ask you data structures, algorithm analysis, basics, foundations, और उसको छोड़ के they are not going to ask you questions के React की ये लाइब्रेरी का ये वाला फंक्शन कभी इस्तेमाल किया है कि नहीं किया. So that students, on the students part के they have to understand this thing. एब्सोल्युटली. और मेरे ख्याल में जैसे हामिद ने भी इस तरफ निशानदेही की है, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर जंप इन, टेक्नोलॉजी के ऊपर जंप इन करना, जबकि पीछे आप शैलो हो और आपको कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो ना पता हो, तो डेफिनेटली फिर वही प्रॉब्लम होगी. मिलियंस ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल वेटिंग फॉर द कैंडिडेट्स, और वहां से जो कैंडिडेट शिकायत करते हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, और वहां से इंडस्ट्री शिकायत करती है कि हमारे पास जो है वो स्किल्ड लेबर नहीं है. मेरे ख्याल में ये गैप हमें कवर करने की एक जरूरत है. सो हामिद, कमिंग टूवर्ड्स यू, आप माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग को इतने जबरदस्त अंदाज से देखते हैं और इतने टॉप इंस्टीट्यूट से आप उसको सारी देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं और प्रैक्टिशनर भी हैं. तो एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग का पाकिस्तान के अंदर यकीन करें अच्छा बंदा मिलना बहुत मुश्किल काम है. वैसे तो रिएक्ट का बंदा भी मिलना मुश्किल काम है, और इस तरह के कुछ टूल्स हैं. तो ये बताएं कि इस तरफ, इस डायरेक्शन के अंदर बहुत पोटेंशियल है. तो यहाँ पर आप क्या गाइड करते हैं, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, किस तरह इसके अंदर जो है वो डिग इन करना चाहिए? बिकॉज डेटा साइंस, फेसबुक जो है वो जाइंट्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर किए बगैर जो है अब आगे नहीं बढ़ सकते. तो इस पे आपकी फीडबैक चाहिए. जी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि आई डोंट नो कि मैं ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया हूँ, बट फ्रॉम लास्ट 2 to 3 months मैंने BCO डिजिटल मार्केटिंग के लड़कों के इंटरव्यूज़ किए हैं, और शायद अभी तक मैंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया.
उसकी वन ऑफ द रीज़न तो चलें ठीक है कि उनका इंडस्ट्री नॉलेज या जितना भी उस लेवल का नहीं होगा जैसे जैसे मेरा है, बट आई थिंक कि हमारे जिस तरह प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसी तरह मार्केटिंग भी एक साइंस है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग को स्किल्ड समझते हैं, लेकिन हम लोग मार्केटिंग को स्किल्ड नहीं समझते। ओवरऑल हमारा इस तरह का एक कॉन्सेप्ट सा बना हुआ है कि जिसने बीए या एमए किया होता है वो भी मार्केटिंग की साइड पे आ जाता है और वो समझता है कि मैं बहुत अच्छा मार्केटर हूँ। जिसने कई बीएससीएस किया होता है वो भी समझता है कि मैं अच्छी मार्केटिंग कर सकता हूँ। या और साइड्स के लोग आके कहते हैं कि और वो कर रहे होते हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसे उस्ताद भी देखे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने यूडेमी से एक कोर्स पढ़ा और उसको मैच्योर कर दिया और उसको डिलीवर करने लग गए और अपने क्लाइंट्स पे लगाने लग गए। अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग ऐसे नहीं चलती। मार्केटिंग साइंस है। मार्केटिंग के लिए आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना, कंज्यूमर साइकी से लेके जाना और उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको उनकी उनकी ऑडियंस को बढ़ाना और ऑडियंस को बढ़ाते बढ़ाते उनसे एक्शंस निकलवाना, फिर लॉयल्टी को बढ़ाना। हम लोग जिसको मार्केटिंग कह रहे होते हैं, मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, बड़ी लंबी सी डिस्कशन है। हम लोग जिसको मार्केटिंग कह रहे होते हैं कहते हैं कि यार मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएट्स किए हैं और ग्रेजुएट होने के बाद वो एजेंसी बना लेता है, वो कहता है मुझे मार्केटिंग करनी है, मुझे प्रोजेक्ट्स चाहिए। इवेंचुअली उसको प्रोजेक्ट्स ही मिलने हैं, लेकिन इन 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 रियल वो सेलिंग डूइंग सेलिंग, ठीक है। मार्केटिंग ये होता है, ऑडियंस है, उसको क्रिएट करते हैं, उसको इतना आपने बिग इनफ कर देना होता है कि फिर आप उस बड़े पूल से खेलते हैं और जितना आपका पूल बड़ा होगा उतना उतना आपका रिटर्न ज्यादा होगा, ठीक है। दैट्स व्हेयर द हार्डवेयर टीचेस, दैट्स व्हेयर द गुड बुक्स टीच यू एज वेल। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो स्ट्रक्चर है, मैंने खुद भी मार्केटिंग पढ़ी हुई है, I'm an MBA myself, हमें उन फनल्स के बारे में नहीं बताया गया जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर जो कि who is ready to actually do the business and e-commerce business में भी, वो कहता है यार मुझे एक फनल बना के दो सेल्स का। उसका पहले अल्फाज ये होता है, और मैंने बड़े बड़े मार्केटर्स से, ट्रस्ट मी, मैंने बड़े बड़े मार्केटर्स से पूछा फनल क्या होता है, एंड दे डिड नॉट हैव एनी क्वेश्चन। उसके बाद मैं इंटरव्यू नहीं करता। If somebody don't answer me कि funnel क्या होता है, I don't interview him anymore because that's वो the आपसे root। मेरे ख्याल में ये भी पूछते होंगे कि फनल क्या होती है, पहले तो ये बताएं। जी जी exactly। और मैं आपको उन उस्तादों की बात कर रहा हूँ जिनके I cannot take the names, but unfortunately they didn't know what is funnel or how to create a funnel। तो जो डिफरेंस है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, आई थिंक सबसे मेच्योर मार्केट में नॉर्थ अमेरिका ही कहूँगा मार्केटिंग के लिए, स्पेशली ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, वो ये है कि द वे दे डू द ऑनलाइन मार्केटिंग, राइट फ्रॉम understanding the customer, building up the audience, or sending the traffic, and from sending the traffic to retargeting them, and then targeting them with multiple channels, and then they keep their best of the social media techniques, using the best of the Facebook and Google algorithms. That's where they target from multiple channels to the same audience, ठीक है। तो अगर मेरा मशवरा ये है कि जितने भी लोग और जो लैग हमारा ये आता है कि हम लोग सर्विस सेंट्रिक तो हैं, हम लोग प्रोडक्ट सेंट्रिक तो हैं, हम लोग कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं हैं। And in order to be consumer centric, you need to learn the marketing and the basics, right? तो जो आप कह रहे थे कि जो मार्केटिंग हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन still there is a gap। आपकी शायद फील्ड नहीं है,
लेकिन you still think there is a gap. I think I'm sure there is a gap. और वो gap यही है कि the way we are grown up, जो हम जिस तरीके से marketers बनते हैं, उसके अंदर उसके conceptual problems हैं, number one, और उसके अंदर tools को understand करने की भी problem है. Facebook एक अलग science है, Google एक अलग science है, email marketing एक अलग science है. मैंने marketing agencies को एक दफ़ा अपने newsletter management का outsource करने को कहा. I ended up firing a lot of agencies because they were not even ready and they were not able to create a newsletter content. The way you write the content into a website is different. The way you write a content in a blog is different than the way you write a content into a newsletter, right? So those conceptual things, again, starting from academia level, कि उस मीडिया के अंदर जाना है. I've seen Beacon House वगैरह ये चीजें ऑफर कर रहे होते हैं, but still उस लेवल से जाके कि उसको conceptually पढ़ाना और फिर जो लाइव टूल्स हमारे पास आज अवेलेबल हैं उसके मुताबिक करना, और इतनी चीजें जिसमें क्लिक फनल्स हैं और टूल्स आगे में उनको अंडरस्टैंड करना कैसे कंज्यूमर साइकी से प्ले करते हैं द इंटरनेशनल मार्केट इन दिस रिगार्ड. राइट. सो मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहूंगा और आपके मुंह से जब फनल की डेफिनेशन निकलेगी ना तो वो बड़ी जबरदस्त होगी. तो 1 to 2 मिनट्स में अगर आप हमारी ऑडियंस को गाइड भी कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. जी. So funnel could be for anything, but I'm talking about the sales and marketing funnel, जिसके अंदर you create an audience, you understand your customer, and from understanding the customer you create an audience, and from creating an audience you actually show them your content so they familiarize with your product or services, and then you retarget them back with the same product and services again and again for the period of time until from knowing your company to actually getting to know about your company to actually taking an action to make a purchase to for your company, and then becoming a loyal customer and inviting other people is actually creating a funnel for your organization. Right. तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया. आपने ये सारी बातें जो हैं वो इतने अच्छे अंदाज में बयान कर दी. सो अब कुछ मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगा डॉक्टर अदनान और हामिद आपसे भी कि जो पेमेंट गेटवेज हैं जो हमारी दुखती रग है, मतलब यहाँ पर हम पेमेंट गेटवेज को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं? गवर्नमेंट के लिए क्या उसमें आपकी राय है, और इसका कोई अल्टरनेटिव है कि जो इंटरनेशनल रेमिटेंसेस हैं वो भी हम इजीली जो है वो यहाँ पर ला सके ताकि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर वो भी इंक्रीज हो सके? डॉक्टर नाम आप जवाब देंगे या you want me to? Please continue. All right, sounds good. Thank you. बिल्कुल दुखती रग है, और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे पहली डिस्कशन मैंने की थी पेमेंट गेटवेज को इनेबल करने के लिए you have to improve your brand name. When I'm talking about the brand name, it's the brand name of Pakistan. Unfortunately, when you talk to PayPal, when you talk to those larger giants जिनकी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आए, so they have a big no for us, and that big no is our legislations, information security, our infrastructure, the ease of for them to actually invest in our environment. So number one तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने ब्रांड नेम को इतना इम्प्रूव करें कि it should feel like as safe country as doing or putting one of their branch in Europe. मैं शायद बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, but this is seriously possible कि अपने ब्रांड नेम को वो बेहतर करें from government level. अब आ जाए from individual level, तो fortunately I'm in a process of association with a lot of American formation companies, जिनका मैं एक I'm becoming a member for them as well, जिसमें वो काविश में इस वजह से कर रहा हूँ कि जो हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल फॉर्मेशन की, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, उनको प्रॉब्लम होती है
बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने की अपने, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, दे से यार हम वी कैन सेंड द मनी इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स मोस्टली, राइट? तो उसको ईज अप करने के लिए मैं एक इनिशिएटिव पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, ठीक है? बट दैट बीइंग सेड, जो हमारे पास अवेलेबल है हमें उससे फिलहाल फ़ायदा उठाना चाहिए। पेपैल अवेलेबल नहीं है, आई अंडरस्टैंड। इसके बरक्स अ लॉट ऑफ अदर मर्चेंट अकाउंट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है? ऑल यू हैव टू डू कि जो हमारे पाशा या हमारे PSEB या अदर कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they need to promote entrepreneurs, they need to promote freelancers, they need to promote the digital agencies to get registered, number one, because still aaj bhi agencies they hesitate कि यार हम registered ना हो, and without registered you cannot get the money, unfortunately। वो कहते हैं यार पेपर से पैसे आ जाए, हम हमें रिपोर्ट ना करने पड़े पैसे। Unfortunately that's not the way, you have to report your money, Yes. right? And then you're lucky that you're being exempted from the tax for international remittance for the software export as well. And take this as an opportunity, register yourself, right? And then after registering yourself, आप अपनी organization को merchant accounts होते हैं अच्छे. For example, we have been using the 2Checkout as well. They're not going to stop you from making a merchant account. If you're in Pakistan, no, there are still available merchant accounts. All they're going to do is maybe they charge 3%, 4% of their fee, which is fine. Even for smaller transactions, it's totally fine. आप उनसे सब्सक्राइब करें, आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करें, अपना NTN निकालें. They have a maybe 30 days approval process. Get it registered out there. जब तक कि हमारे पास पेमेंट गेटवेज का फुकदान है, जब तक कि हमारा ब्रांड नेम बेहतर नहीं है, अवेलेबल ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाए। यस, उसका ओवरऑल हमारा एक नॉलेज का, मैं जिस इनिशिएटिव पे मैं काम भी कर रहा हूँ, ताकि जो जितनी हमारी लोकल एजेंसीज हैं उनमें अवेयरनेस आ सके कि हाउ टू गेट द मनी फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। तो आपसे फिर एक वाइट पेपर भी इंशाल्लाह लिखवाते हैं इसके ऊपर, बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। और मेरे ख्याल में हमारी जो कौम है वो मनी ट्रेल से बचना चाहती है, तो वो आपने कहा ना अभी, तो मनी ट्रेल तो आपको पता है दुखती रह गया हमारी। वो तो नहीं, असल में आप इनको फायदे, हमारी कौम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हम इनको फायदा अगर आप बताएंगे तो जरूर करेंगे। इनको बस फायदा ये बताना चाहिए कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवाने के बाद जो आपको पैसे आएंगे, दैट्स एक्चुअली गोना बी अ व्हाइट मनी फॉर यू, which would be an ease for you if you want to purchase a car, if you want to have a house for yourself, जो कि अगर आप उसको white money नहीं करेंगे, will be a problem for you. Maybe थोड़ी awareness की जरूरत है। Right. अच्छा, अब बात ऐसे है कि मेरा तो दिल नहीं कर रहा, मतलब अपने जैसे लोगों से बात करने का। मैं तो आपसे घंटों और बात कर सकता हूँ, तो क्या करें, कंक्लूड कर लें या मैं आपको तीसरा लिंक भेजूं? जैसे आप कहते हैं। कंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद नमाज का भी टाइम हो गया। जी एब्सोल्युटली, दैट्स द पॉइंट। तो ऐसा करते हैं कि अभी एक 2-2 मिनट, क्योंकि 5 मिनट का सेशन रह गया, तो फाइनल थॉट्स फ्रॉम डॉक्टर अदनान एंड देन फाइनल थॉट्स फ्रॉम यू, 2 मिनट्स काफी होंगे। सो डॉक्टर अदनान, वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को। सो फाइनल थॉट्स फ्रॉम यू। So from my side, actually, I would say कि पाकिस्तान में IT landscape is really very promising. Brand name is one issue, but I think the main reason why we are really far behind is that as usual we were a bit late on this. There are few risk factors जिसको हमें थोड़ा सा ज़हन में रखना पड़ेगा, और there are some things के जिसको हमें focus करना चाहिए, and one of them is of course the security, which of course the main responsibility of the government, and because of this, if there is some disturbances to the internet या IT infrastructure, because the kind of SLAs बहुत सी चीज़ों के जो होते हैं, they cannot afford these kind of disturbances. I know some यानी मेरे सामने कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए इन द पास्ट जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी को बहुत रेवेन्यूज का लॉस करना पड़ा, जस्ट बिकॉज SLAs were disturbed because of this. Another thing is pressure on wages. This is another aspect. There are no consensus industry-wise on the wages, on ethics. We already discussed, हामिद ने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. Talent is another biggest issue we have. Despite of the fact that 20,000 IT graduates are graduating every year, but the quality is a big question. Then the trainings, not only of the new graduates, but also जो already industry के अंदर हैं,
executive positions ke and non-executive positions ke. And one of the biggest thing also the customer concentration, because some of our biggest companies, IT companies, when it comes to like systems or like many others, if you closely study them, their reliance is only few customers. So 90% of their revenues are coming from a few customers. And this is another thing that we have to not only penetrate within US market, but your हमारी dependencies individual level पर and companies level पर कम से कम. So these were some of those. I mean, for me, I'm very optimistic, and I think we will really. मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम की साइकी है कि you sometimes you have to run before you can walk. तो हम skip करके तो 4-5 साल जितने भी पीछे रह जाते हैं हम उसको फिर कवर कर लेते हैं. तो last 2 minutes हामिद please you conclude. बस मैं मेरा स्टूडेंट्स के साथ ज़रा एफिलिएशन ज़्यादा होती है, तो मेरा उनके लिए मैसेज ये है कि अपने आप को अपना नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्टैग्नेंट कभी जिंदगी में ना रखें. इवन के नीच को एक्सप्लोर करें और उसमें देखें कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी बन सकती है और उसके अंदर आपका अपना एक नाम बनाएं. तो आपकी जो इफ यू वांट टू अर्न मोर मनी देन यू शुड बी लेबल्ड विद अ ह्यूज स्किल, जिससे आपके पैसे जो है ना वो ज़्यादा बढ़ेंगे. और अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द स्किल, अपने सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी जो ऑनेस्टी हमारे इस्लाम का हिस्सा भी है कि जितनी भी आप डीलिंग करें उसके अंदर सच होना चाहिए, उसके अंदर हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए. तो जब आप इंटरनेशनल मार्केट से बिजनेस करते हैं तो अपने आप को सच और ईमानदारी से उनके साथ बिजनेस करें और देने वाला मामला रखें, हर वक्त लेने वाला मामला उनके साथ ना रखा करें. और फिर ये करते करते अपना अच्छी जगहों पे अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें. काम करने के बाद व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट कि अब मैं नाउ आई कैन रन एन एजेंसी, उसके बाद एजेंसी को रन करें ताकि आप लोगों को इंसाफ दे सकें, आप उनके साथ अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ भी कर सकें, उनके करियर्स पे भी काम कर सकें. और गवर्नमेंट लेवल पे हम जितना अपने ब्रांड नेम पाकिस्तान को बेहतर कर सकें इंटरनेशनल मीडिया की नज़र के अंदर, इट्स गोइंग टू हेल्प आवर होल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. राइट. सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन. आपके साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आया और हमारी ऑडियंस को भी डेफिनेटली इतना जो प्लेथोरा ऑफ नॉलेज है वो मिला होगा और वो ज़रूर इस पे अमल करेंगे. तो हम इंशाल्लाह मिल के जो है वो जवानों को पीरों का उस्ताद कर वाली जो बात है इंशाल्लाह हम उसको मिल के करेंगे. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अदनान एंड हामिद फॉर योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू. All right, thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम.